بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے تیری چاہ میں اور اس کی رائٹر ہیں ایمان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ناولز پسند آ رہے ہوں گے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ ابھی وہ کالج سے آئی ہی تھی، کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے لیٹی تھی کہ دھار کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور عفیفہ ہامتی کامتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے صدف اور ندا بھی۔ کیا ہوا؟ وفا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہیں پتا ہے کون آیا ہے؟ عفیفہ نے جیسے تجسس بھرایا۔ کون؟ وفا نے سوالیہ نظروں میں پوچھا۔ مسٹر ہٹلر، ندا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو سمیٹ کر کہا۔ ابھی دادو کے کمرے کے باہر سے آ رہے ہیں ہم۔ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، عفیفہ نے رازداری سے بولا۔ ان سب میں اسے ہی کان لگا کے سن لینے کا شوق تھا۔ دادو موسیٰ بھائی کو کسی بات کے لیے منا رہی تھی اور وہ مسلسل نہ کر رہے تھے۔ تم لوگ بھی نا کیوں بڑوں کی باتوں میں کان لگاتے ہو؟ کسی دن دیکھ لیا نا دادو یا کسی اور نے تو لگ پتہ جانا ہے۔ وفا نے ان تینوں کو تنبیہ کی جس کا ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ اوہ وفا، تم تو ہو ہی ڈرپوک۔ اچھا ندا، ذرا معاذ کو دیکھو تو اسے کچھ پتہ چلا کیا؟ عفیفہ کو ابھی بھی دادو کے کمرے میں ہونے والے باتوں کی فکر تھی۔ نہیں، معاذ شان اور حنان کے ساتھ افسردہ لہجے میں کہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور تینوں زمین پر دراز ہو گئے۔ تم لوگوں سے کبھی کوئی کام ہوا ہے؟ عفیفہ نے ترک کر بولا۔ پورے 20 منٹ بی جمالوں کی طرح کان لگائے ہیں اور تم بول رہی ہو کچھ نہیں کیا؟ شان نے تڑپتے ہوئے کہا۔ دادو کا لاڈلا پوتا ان کی گود میں جو سر رکھے لیٹا تھا کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ کھڑے کھڑے ٹانگیں دکھ گئیں۔ معاذ نے ٹانگوں کو دباتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وفا کو اٹھتے دیکھ ندا بولی۔ سونے تو تم لوگوں نے دینا نہیں، کھانا ہی کھا لوں جا کر، وفا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھ کر جانا کہیں راستے میں مسٹر ہٹلر کا ہی کھانا نہ بن جانا، ویسے بھی ہر وقت تو وہ کچا زبانے کو تیار رہتے ہیں۔ حنان نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ وفا گھور کر رہ گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں لاؤنج سے گزر رہی تھی کہ سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ مقابل کو تو کچھ نہ ہوا مگر وفا کا سر گھوم کے رہ گیا۔ پھر جو ہی نظر سامنے گئی تو وہ آتش فشاں بنا کھڑا تھا۔ اندھی ہو دکھائی نہیں دیتا، موسیٰ نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ سوری موسیٰ بھائی، میں نے دیکھا نہیں، وفا نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو آنکھیں نکال دو، جب استعمال نہیں کرنی۔ تو وہ غصے سے پھنکارتا ہوا باہر نکل گیا۔ وفا بس اپنے ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ ارے کوئی بات نہیں موسیٰ بھائی تو ہمیشہ ہی انگارے چبائے ہوتے ہیں، معاذ نے وفا کے پاس آ کر کہا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی جانب چل دی کہ جس کی خاطر وہ آئی تھی ایسے ہی صحیح، مگر اس کا دیدار تو ہو گیا تھا۔ دل جس کا طلبگار ہے اسے خبر ہی کہاں ہے۔ وفا اور صدف لائن میں بیٹھی کسی کہانی پر تبصرہ کر رہی تھی۔ تم لوگوں کے لیے 2 بڑی خبریں لائی ہوں، عفیفہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ صدف نے جھٹ پوچھا۔ پہلی تو یہ کہ کل جو کھچڑی دادو کے کمرے میں پک رہی تھی وہ یہ تھی کہ تائی چاچی اور دادو مل کر موسیٰ بھائی کو شادی کے لیے راضی کر رہے تھے اور وہ نہ کر رہے تھے۔ ندا نے باقاعدہ سر کے اشارے سے نہ کر کے دکھایا۔ اور دوسری، وفا نے بےتابی سے کہا، اسے شدید بے چینی ہوئی تھی، دوسری یہ کہ آئکا چچی کی کوئی دوست ہیں، ان کے ثبوت سے آپ صاحبہ کا رشتہ عنقریب طے ہونے جا رہا ہے۔ کیا؟ وفا بے ساختہ چیخ اٹھی۔ بالکل، ابھی میں نمرا تائی اور آئکا چچی کی باتیں سن کر آ رہی ہوں۔ عفیفہ نے وفا کا رد عمل دیکھ کر وضاحت کی۔ وفا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور دادو کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر دادو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا بات ہے میری گڑیا، کیوں اداس ہے؟ انہوں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ دادو، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ماما پاپا کو کہہ دینا، وفا نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ گھر کے سبھی بچے دادو کے زیادہ قریب تھے، ان سے ہر مسئلے پر دل کھول کر اظہار کرتے تھے اور وفا جو اپنی کوئی بھی بات کسی سے نہیں کرتی تھی دادو سے بلا جھجک بول دیتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کیوں وفا، ایسا کیوں؟ بس دادو پلیز، وہ بیٹھتے ہوئے بولی، مگر سب تو چاہ رہے تھے کہ موسیٰ اور تمہاری ساتھ شادی کر دیں۔ نہیں دادو، مجھے شادی نہیں کرنی، وفا نے بے چین ہو کر انہیں دیکھا۔ وفا کے انداز سے تو وہ پہلے ہی جان گئی تھی، مگر وفا کی اس بے قلی نے آج واضح کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے اماں؟ مرتضیٰ صاحب نے حیرت سے کہا۔ کیوں ممکن نہیں؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں اماں، سب جانتے ہوئے بھی؟ مرتضیٰ صاحب نے تعصب سے سر ہلایا۔ کب تک تو موسیٰ کو اس کی ایک غلطی کی سزا دیتا رہے گا؟ ہیرا نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تو اس سے بات نہیں کرتا، اپنا گھر والوں کے ہوتے ہوئے اکیلا رہتا ہے وہ، کیا یہ سزا کافی نہیں؟ اب ختم کر دے اس قصے کو، دادو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی صاحب،
मुबशर साहब ने दादू की बात की तायीद करते हुए कहा, भाई साहब, हम सब जानते हैं मूसा से एक संगीन गलती हुई थी और वो आज तक इसकी सज़ा भी तो काट रहा है। अगर आप राज़ी हैं तो मुझे और आयका को अपनी बेटी वफ़ा का हाथ मूसा के हाथ में देने से कोई एतराज़ नहीं। और फिर किसी न किसी से तो मूसा की शादी होना है, तो फिर वफ़ा क्यों नहीं? वफ़ा समझदार बच्ची है, मूसा की हम मिजाज भी, वो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। देख मुर्तज़ा, जो बात पिछले 2 सालों से इस घर की 4 दीवारी में कैद है, उसे कैद ही रहने दे। अगर जो बाहर निकली तो 100 अफसानों में फैलेगी, और अगर जो वफ़ा को इल्म हुआ तो। मुर्तज़ा साहब ने खर्चा जाहिर किया। भाई साहब, वफ़ा हीरा नहीं है। मुझे भी अफसोस है कि मेरी बेटी ने एक भी मौका दिए बगैर मूसा से रिश्ता तोड़ दिया, मगर मुझे यकीन है वफ़ा ऐसा नहीं करेगी। लुकमान साहब ने उनका खदशा दूर किया। और वैसे भी मूसा की एक गलती के पीछे हम उसकी अच्छाइयाँ तो नहीं भुला सकते। सब पर ही सख्ता तारी हो गया था, ये कैसे मुमकिन है वफ़ा? सबसे पहले सदफ का सख्ता टूटा था। तमाम कज़न ने जब से वफ़ा की शादी मूसा के साथ होने की खबर सुनी थी, सबको धचका लगा था। हैरान तो वफ़ा भी थी। रात ही तो दादू ने उससे उसकी मर्ज़ी पूछी थी। इस पर तो शादी मर्द की सी कैफियत तारी थी। मैं जानती हूँ वो गुस्से के थोड़ा तेज़ है, मगर दिल का अच्छा है। वो मेरा बेटा है, इसलिए नहीं कह रही। तुम भी मुझे मूसा की तरह ही अजीज़ हो वफ़ा। अगर तुमसे दिल से राज़ी हो तो हाँ करना, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। निम्रा ताई ने प्यार से कहा था। अगर आप सब राज़ी हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने अपने धड़कते दिल को वो मुश्किल संभाल कर कहा जो किसी भी वक्त पसलियाँ तोड़ कर बाहर आ जाने को था। माँ सदके, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, दादू ने बुलाए लेते हुए कहा। बोलो ना, ये कैसे हुआ? निदा ने आँख लगाई तो वो सोचो की रो से निकली। तुम लोगों को क्या मुसीबत है? वफ़ा ने तीखी नज़रों से जवाब दिया। तो अगर मैं गलत नहीं तो आप कहीं मिस्टर हिटलर से इश्क तो नहीं कर बैठी? शान ने अपनी हैरत बयान करते हुए कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुमने कई रिश्ते मना किए, मगर मूसा भाई के लिए नहीं, इसलिए? शान ने उसे बावर करवाया। भाई, जब दादू और निम्रा ताई ने पूछा तो मैं इनकार न कर सकी। वफ़ा ने बेनियाजी से कहा। झूठ मत बोलो वफ़ा, तुम्हारा चेहरा चुगली खा रहा है कि तुम मूसा भाई से मोहब्बत करती हो। वफ़ा ये जानते हुए भी कि मूसा भाई हिराबी को पसंद करते हैं, माज ने उसे याद दिलाया। करते हैं नहीं, करते थे। वफ़ा ने माज की बात सही की तो सब उसकी शक्ल देखेंगे। वफ़ा, वो इश्क में हारा हुआ इंसान है, सोच समझ कर फैसला करो। मूसा भाई की हंसी को तो जंग लग गया है, मगर तुम क्यों ऐसा चाहती हो? हन्नान ने उसे प्यार से समझाया। ये कुछ नहीं चाहती, बस मूसा भाई को चाहती है। निदा ने टुकड़ा लगाया तो वो ब्लश होगी। तुम सब के सब बहुत बदतमीज़ हो। ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। कोशिश बहुत की, ज़ारे मोहब्बत बयां ना हो। मुमकिन कहाँ है आग लगे और धुआं ना हो। वफ़ा, इस फैसले को निभा लोगी? माज ने कॉलेज से पिक करते हुए पूछा। माज, मोहब्बत तो निभाने का नाम है, वफ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। वफ़ा, यूँ किसी पत्थर में झोंक डालने के चक्कर में खुद पत्थर न बन जाना। बद्दुआ दे रहे हैं? नहीं, मुझे खुशी होगी कि तुम्हें हमेशा खुश देख के। माज ने गाड़ी मुमताज़ हाउस के गेट पर रोकी। गाड़ी से निकलते हुए वफ़ा ने कहा। माज भाई, वो कितने ही पत्थर दिल क्यों ना हो, चाहे कितनी ही नफ़रत उनके अंदर क्यों ना भरी हो, मुझे यकीन है मैं अपनी चाहत और मोहब्बत उन्हें लौटने पर मजबूर कर देगी। मेरी इस वक्त वफ़ा के चेहरे पर एक चमक थी। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, शुक्रिया। ये कहते के साथ ही वो आगे बढ़ गई। दादू के कमरे में आई तो दादू वहाँ मौजूद नहीं थी, मगर मूसा को वहाँ देख कर रुक गई। वो भी उसे देख चुका था। वफ़ा, उसने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए थे कि वो पुकार गया। लहजे में एक काट थी। जी, वो फंसी आवाज़ में बोली। ये जो तमाशा चल रहा है, बराए मेहरबानी बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मूसा गुस्से से फिनकारा तो वो लम्हा भर को गंग हो गई। जब अब इनकार कर चुके हैं तो मेरे इनकार की क्या ज़रूरत? उसने वो मुश्किल कहा। ज़रूरत है, वो गुस्से से बोला, मगर अब मैं इनकार नहीं कर सकती। वैसे तो कई बार कर चुकी हो, फिर अब करने में क्या हर्ज है? वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ। क्योंकि सबके पूछने पर मैं हाँ कह चुकी हूँ। इसको जवाब देकर उसने जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। तुम्हें इनकार करना होगा, मूसा ने वफ़ा को झंझोड़ कर कहा। बोलो, करोगी ना इनकार? वो सख्त इश्तिआल में बोला। और अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। उसको झटके से दूर करके वो कमरे से निकल गया और वफ़ा भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। बेख्तियार फूट फूट कर रोती थी। मैं जानती हूँ मूसा, आप दिल के बुरे नहीं हैं। मोहब्बत में टुकराया इंसान ऐसा ही होता है। मर्द की अना को जब ठेस लगती है तो वो पूरी दुनिया को आग लगा देना चाहता है। मैं आपको समेट लूँगी मूसा, समेट लूँगी। मैं आपको इतनी मोहब्बत दूँगी कि हीरापी की यादें आपके दिलो दिमाग से खुरस दूँगी, चाहे इसमें मेरा दिल ही क्यों ना ज़ख्मी हो जाए।
वफ़ा अपने आप से अहद व पैमान बांध रही थी। यही अदाब मोहब्बत का तकाजा है। तू मुझे दर्द दे, मैं कहूँ बिस्मिल्लाह। मूसा ने सिगरेट सुलगाकर तीखी नज़रों से सामने सजी सबरी बैठी वफ़ा को देखा। कितना मना किया था उसने दादों को कि उसने शादी नहीं करनी, मगर किसी ने नहीं मानी। हर मुमकिन कोशिश कर ली थी मगर बेसूद। मामा ने अपनी कसम की जंजीर में बांधा तो दादों ने धमकी दी कि अगर शादी न की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसका तो दिल होल गया। ना चाहते हुए भी बिलाहिर उसको हार मारना पड़ी। किस इंतज़ार में बैठी हो यहाँ? क्या मेरे? मूसा ने अपने सीने पर उंगली रख कर इशारा किया। हाँ, वो कहा लगा कर हंसा। मगर मुझे तुम्हारे इस सरापे से कोई सरोकार नहीं, समझी? उठो यहाँ से, उसने दहाड़ते हुए कहा। वफ़ा जो पहले ही सहमी बैठी थी, एक झटके से नीचे उतरी थी, मगर उसने उसे बाजू से दबोच लिया। कहा था ना, मना कर दो, मगर नहीं किया। अब तुम भुगतो मुझसे शादी करने का अंजाम। मूसा ने शदीद बेफर कर कहा। तुमने अपनी मर्जी से ये खारदार राह का इंतखाब किया है। वो आंखों में खौफ लिए उसे देख रही थी। झटके से उसने वफ़ा को छोड़ा था और वो गिरते गिरते संभली थी। वफ़ा को अपनी मोहब्बत का ये पहला तोहफा मिला था। वो कपकपा कर रह गई थी। मेरे महबूब, मुझे तुम्हारी हर नफ़रत मंजूर है। मैं ये यकीन दिलाऊंगी कि हर औरत मोहब्बत की राह में तन्हा नहीं छोड़ती, और मुझे यकीन है मैं साबित कदम रहूँगी। आईने के सामने खड़ी हुई तो दो मोती आंख से टपक पड़े। कितनी प्यार से सदफ और निदा ने उसे सजाया था। देखना वफ़ा, आज तो मूसा भाई तुम्हें देखकर अपना आप खो बैठेंगे। अफीफ़ा ने उसे छेड़ा था। हाँ, वो पत्थर ज़रूर मोम होगा, तुम देख लेना। वफ़ा ने चूड़ियों को उतारा। मुझे लुभाने के लिए काफ़ी कील कांटों से लेस किया था खुद को, मूसा ने तंज भरे लहजे में कहा। वो जल्दी से अपना भारी अरूसी जोड़ा उठाए बाथरूम में चली गई। आंसू का गोला जो उसके हलक में फंस गया था। बेशक मूसा के अंदर नफरत थी जो उसके चेहरे से हर वक्त ज़ाहिर भी होती थी, मगर आज इस नफरत में आग भड़की हुई थी जो वफ़ा को सहमा रही थी। बाहर निकली तो वह बेड पर दराज सो गया था। शायद उसके दिल का गुबार निकल चुका था। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर ढेर हो गई। मेरी ये मोहब्बत आर्जी नहीं है मूसा, बहुत जल्द आपको इस बात का इतराक हो जाएगा। क्यों हिरापी, आपने मूसा का हाथ बीच राह में क्यों छोड़ दिया? क्यों आपने रास्ता बदल लिया? जिस शख्स के होंठों से कभी कहे फूटते थे, आज वो मुस्कुराना ही भूल गया है। वफ़ा की आंखों के सामने वो लम्हे घूम गए थे। मूसा की मोहब्बत हिरापी के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं थी। शुरू से देखा था, हीरा भी पसंद करती थी, मगर मूसा, वो उन पर जान देता था। मूसा की पढ़ाई कंप्लीट होते ही दोनों की मंगनी कर दी गई। मूसा तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। बात बे बात कहे उसके मुमताज़ हाउस में खुशियाँ बखेरते थे। न जाने दोनों में मोहब्बत कैसे हो गई थी, क्योंकि मूसा और हीरा दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग थे। जो चीज़ें हिरापी को पसंद होती वो मूसा के मिजाज के बरक्स होती, मगर फिर भी वो कुछ ना कहते। जबकि हिरापी को तो मूसा की पसंद नापसंद से कोई सरोकार ही न था। वो वही करती जिसको करने का दिल होता, और यही बात वफ़ा को उनकी बहुत बुरी लगती। वफ़ा अक्सर उनसे पूछती, हिरापी, आप कभी भी मूसा भाई की पसंद से कुछ नहीं करती? तो वो कहती, अरे जान, सबको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, फिर मैं किसी के लिए भी अपने आप को नहीं बदल सकती। मगर हिरापी, मोहब्बत का मतलब ही अपने महबूब की खुशी में ढलना है। हाँ, तो मूसा ढल जाए, हीरा बेनियाजी से कहती तो वफ़ा उनका मुंह तक भी रह जाती। वो ये चाहती थी कि हिरापी भी मूसा की पसंद का ख्याल रखे, मगर जब ऐसा ना हुआ तो वफ़ा ने मूसा को खुश करने के लिए उसकी हर पसंद को अपना लिया। दाऊद को लाइट कलर पसंद थे। वफ़ा की अलमारी में से हर शोख रंग गायब हो गया। उसको लड़कियों का बुलंद बोलना पसंद नहीं था। वफ़ा का लहजा धीमा हो गया। मूसा को लंबे बाल पसंद थे। उसने फिर अपने बालों को कैंची न लगवाई। फिर न जाने कब और कैसे वफ़ा मूसा की पसंद में ढलते ढलते उसकी मोहब्बत में भी ढल गई। वो पोर डूब गई थी मूसा की मोहब्बत में, ये जानते हुए भी कि मूसा एक शराब है, वो उसे कभी नहीं पा सकती। मगर उसने मूसा को पाने की चाह की ही कब थी? वो तो मोहब्बत की उस सीढ़ी पर खड़ी थी जहाँ महबूब को दूर से तकना हासिल करने से ज़्यादा तस्कीन देता है। बेसबब, बेवजह, बेइरादा चाहा, देख हमने तुझे कितना सादा चाहा। मूसा के हर अंदाज से उसे इश्क हो गया था। वफ़ा घंटों उसको देखती, उसकी हंसी को अपने दिल में उतारती, उसकी आंखों की चमक में रात भर खोई रहती थी। लेकिन फिर एक दिन वो आंखें वीरान हो गई। मूसा के कहे दम तोड़ के हिरापी ने मूसा से शादी से इनकार कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था, किसी को पता नहीं था। और फिर मूसा ने मुमताज़ हाउस को खैराबाद कह दिया। सुबह की चमकीली धूप ने उसकी नींद को तोड़ा था। न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लगी थी। सर फोड़े की मानिंद दुख रहा था। वो भी ठीक से उठी भी नहीं थी
कि वो भुनाया हुआ कमरे में दाखिल हुआ और उसकी जानिब कहरबार निगाह डालकर बाहर निकल गया। उसने सोफे की बुर्ज से सर टिका दिया। मैं भी अगर हमदर्द न बनी मूसा तो मुझे ये डर है कहीं आप पागल ना हो जाए, मगर मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत आप पर मरहम साबित होगी। वफा ने गहरा सांस लिया। फ़ोन की घंटी ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ की। हेलो, कैसी हो वफा? दूसरी तरफ अफीफ़ा थी। वह संभल कर खड़ी हुई। मैं ठीक, तुम लोग बताओ? हाँ, हम सब भी ठीक हैं। अच्छा ये बताओ, मूसा भाई का मिजाज तुम्हारे साथ? अफीफ़ा ने बात अधूरी छोड़ दी तो कुछ देर के लिए वफा भी चुप हो गई, फिर संभल कर बोली, हाँ सही है, तुम लोग परेशान न हो। वफा ने तसल्ली दी। सच में? वो चीही जैसे उसको यकीन न आया हो। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? अफीफ़ा ने फिर पूछा तो वफा के दिमाग में रात वाला मंजर घूम गया, मगर जब से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा घर में सब कैसे हैं? वफा बात बदल गई और फिर कुछ इधर उधर की बात करके फ़ोन रख दिया। दोपहर से शाम हो गई। रात का अंधेरा चार सू फैला तो मूसा घर में दाखिल हुआ। वह किचन में मौजूद खाना बना रही थी। चाय लाऊं आपके लिए? वफा ने किचन से बाहर आते हुए पूछा। जो वो कमरे की जानिब बढ़ रहा था, मुड़कर उसे देखा। लाइट से मेकअप में निखरी निखरी वो इसको ज़रा ना एहसास होने देना चाहती थी कि पूरे दिन रोने में गुजारा है। मूसा ने गौर से देखा। कहीं से भी तो जाहिर नहीं हो रहा था कि वो उदास या परेशान है। लम्हे भर में मूसा का पारा चढ़ा। मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, वो बिफरा। वफा सहम के 2 कदम पीछे हुई। और ये जो हार सिंगार करे बैठी हो ना, आज के बाद ना देखो, सख्त नफरत है मुझे ऐसी हरकतों से। वो उसके अंदर नफरत उतार कर कमरे में चला गया। वो पत्थर भी मारें तो उठाकर जोलियाँ भर लूँ, कभी महबूब के तोहफ़ों को ठुकराया नहीं करते। सादा से फिरोजी सूट में बालों को जूड़े की शक्ल में बनाए वो नहायत ही मासूम लग रही थी। मूसा की दिल ने एक बीट मिस की थी, मगर बस एक लम्हे। अगले लम्हे वो टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकला था। वो जो मेज़ पर नाश्ता लगा रही थी उसे रोक भी ना पाई। रात गहरी हो रही थी। घड़ी ने 12 का हिंसा अबूर किया, मगर मूसा का कुछ पता न था। तकरीबन 1 बजे वो आया था। कहाँ थे आप? काफ़ी देर कर दी। उसने जूते उतारते हुए सर को ऊपर करके देखा। ये पूछने का हक तुम्हें किसने दिया? जहाँ हो ना वहीं रहो, समझी? उसे उसकी औकात याद दिलाता वो बाथरूम में घुस गया और वो आंसू पीती रह गई। आप नफरत से भी देख लेते हो, आपकी ये भी मेहरबानी है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। दोपहर मूसा का फ़ोन आया था। दादू की तबीयत ठीक नहीं, वो वफा को याद कर रही थी, इसलिए मूसा ने चलने का कहा, वरना शादी के बाद सिर्फ 2 बार ही जाना हुआ था। मामा ने कहा था वफा वो बहुत अकेला है, उसे तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी उसे संभाल लेगी और वो मुस्कुरा कर रहेगी। क्या सारी रात यहीं पर ही गुजारनी है? मूसा की आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर उठी थी। अपने ही दुपट्टे में उलझ कर सीधा मूसा की बाहों में झूल गई थी। वफा के एक हाथ मूसा की गर्दन में हाइल था तो दूसरे हाथ से उसने उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया था। इस अचानक अफ्तार पर मूसा भी सटपटा गया। वफा अपने चेहरे पर मूसा की गर्म सांसों का तसलसल बआसानी महसूस कर सकती थी। कितने ही पल मूसा वफा के कपड़ों में से उठती होश को बेगाना करने वाली महक में डूबा रहा, मगर अगले ही पल उसे अपनी बेखुदी का एहसास हुआ तो झटके से वफा को दूर किया। बहुत शौक है तुम्हें मेरी गुर्बत का, वो काटदार लहजे में बोला था, और वफा उसके इन अल्फाज पर अपने आप में सिमट कर रह गई। मैंने जानकर नहीं किया, वफा ने सहमी आवाज़ में कहा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सब लड़कियों को। वो शहादत की उंगली उठाकर वफा को बावर करवाता लंबे लंबे ढक भरता निकल गया। हम बेशिकस्ता दिल हैं, परेशान तुम भी हो, अंदर से रेजा रेजा मेरी जान तुम भी हो। कुछ देर वफा दादू से बात करने के बाद उठकर लाउंज में आ गई। अरे वफा तुम कब आई? निदा ने उसे देखते हुए पूछा। बस थोड़ी देर हुई। उसने अपने मूड को खुशगवार बनाने की कोशिश की। और तुम सब बताओ, सब ठीक है? अरे अफीफ़ा क्या बात है, आज क्या कोई खबर नहीं? नई ताज़ा वफा ने उसे छेड़ा, जो टीवी देखने में मसरूफ़ थी। हाँ खबर तो ऐसी है कि क्या बताए, मगर अफीफ़ा बता नहीं पाएगी। मुआज़ ने उसे छेड़ा। अच्छा ऐसी क्या बात है? वफा ने शोख लहजे में कहा। खबर ये है कि सबने मिलकर मेरी यानी कि मुआज़ मुर्तज़ा की ज़िंदगी में से सुकून गारत करने का फ़ैसला किया है, इन साहिबा यानी अफीफ़ा लुकमान के हाथों। मुआज़ ने बड़े ही शाहाना अंदाज में कहा तो सबकी हंसी छूट गई। हाँ तो तुम कौन सा मेरे लिए सुकून की गोली का सा काम करते हो? अफीफ़ा से ज़्यादा देर रहा न गया तो बोली, और एक बार फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वफा ने इस खट्टे मीठे माहौल में अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस किया। मूसा टीवी लाउंज में बैठा कोई शो देख रहा था जब वो चाय लेकर आई। चाय? वफा की पुकार पर मूसा ने नज़र उठाकर देखा तो जैसे नज़र ने पलटने से इनकार कर दिया। धानी रंग के रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई वाले सूट में उसका नाजुक सरापा गजब ढा रहा था। कमर तक आते रेशमी घने बाल बिखरे हुए थे। मेकअप के नाम पर आंखों में काजल की पतली सी लकीर मौजूद थी।
जो उसकी आंखों की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। बिलाशुबा वो हसीन थी। एक ट्रांस की सी कैफियत में वो खड़ा हुआ था। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं वफ़ा, मूसा ने उसके बालों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए कहा। वफ़ा ने हैरान होकर मूसा को देखा। मूसा की इस मिठास भरे लबो लहजों को देखकर वो तो खुशी से मरने के करीब थी। हीरा, तुम अपने बाल क्यों नहीं बढ़ाती? तुम्हें पता है ना मुझे कितने पसंद है। ओह मूसा, मुझसे नहीं संभाले जाते, हीरा नखौश से जवाब देती। मूसा के दिमाग में हीरा की बात गूंजी थी और मूसा का खुमार टूटा था। उसने एक झटके से वफ़ा के बालों को मुट्ठी में पकड़ा। वफ़ा की सिसकी निकली थी और चाय का कप जो अभी तक उसके हाथ में था, हाथ से छूटकर गिरा था। उसका पैर जला गया। मूसा प्लीज़ मेरे बाल छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है, वफ़ा ने रोते हुए कहा। क्यों? मुझे लुभाने के लिए ही तो ये सब करती हो ना। मूसा ने बालों को और सख्ती से झकड़ कर वफ़ा को अपने नज़दीक करते हुए बोला। वफ़ा ज़ारों के तार रोते हुए अपने बालों को छुड़वा रही थी, मगर मूसा बेइंतहा जलाल में था। उसको इसका रोना कतई नज़र नहीं आ रहा था। वो जुनून ख़ज़ी में इंतहा की हद तक था। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी जुल्फ़ों को यूँ खुला देखा तो याद रखना, इनके साथ साथ तुम्हारी गर्दन काटने में भी देर नहीं लगाऊंगा। ज़ोर से उसने वफ़ा को धक्का दिया था और वो पास रखी टेबल से टकरा कर ज़मीन बोस हुई। कब तक, आखिर कब तक चलेगा ये सब? वो घुटनों में सर दिए अपने आप से सवाल कर रही थी। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था। वो तो शादी के शुरू दिन से ही ऐसा कर रहा था। वफ़ा की हर चीज़ से उसे नफरत थी, जिसका इजहार वो हर लम्हे करता था। हल्के रंग पहनती, उसकी मर्ज़ी का खाना बनाती या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने की कोशिश करती तो कहता मेरी पसंद में ढलकर मुझे मतवज्जा करने के चोंचले हैं, मगर मैं कभी फरीख्ता नहीं हूँगा। और अगर उसके बरक्स कोई काम करती तो गुस्से से चीखता कि आज के बाद ये सब किया तो जान से मार दूंगा। वफ़ा तो हरासा होकर रह गई थी। कोई सिरा ही हाथ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मूसा के दिल से नफरत दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर आज वफ़ा आज भी वहीं खड़ी थी जहाँ से चली थी। मूसा ने तो उसे अपनी ही नज़रों में जगह नहीं दी थी। कुजा अपने दिल तक पहुँचने की रसाई कैसे देता। रात वफ़ा ने अपने रब के आगे रो रो कर दुआएं की थी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखा। कैसे मैं मूसा के दिल से नफरत को मिटाऊं? मैंने हमेशा उनकी खुशी मांगी है तुझसे। मूसा के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। वो शख्स खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। आंसू बहाती दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने रब के आगे फरियादें कर रही थी। ऐ मेरे रब, तूने उस शख्स का साथ दिया है, इसे मेरा भी बना दे कि तेरे लिए ये मुश्किल नहीं। वो रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो गई थी। मूसा की आंख न जाने एहसास से खुली थी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर पर किसी के हाथों का लम्स हो। उसने मुंदी मुंदी आंखों से अपने सामने देखा तो वफ़ा मूसा के पैरों को थामे ज़मीन पर बैठी थी। मूसा को हैरत का शदीद झटका लगा। वो उठना चाहता था मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। वो लम्हे मूसा के अंदर उतर रहा था। कुछ ही पल बाद वफ़ा खामोशी से उठी, एक नज़र मूसा पर डाली और सोफे पर लेट गई। तुझे मुफ्त में जो मिल गए हैं हम, तू कदर ना करे, ये तेरा हक है। रात का अंधेरा अपने पर फैलाया हुआ था। पूरे घर में सुकूत तारी था। 2 दिन बाद वो आज घर आया था। उसने हाथ बढ़ाए लाइट जलाई तो सामने लाउंज के मंजर ने उसे हिलाकर रख दिया। वफ़ा कारपेट पर ऊंधी पड़ी थी। वो भागता हुआ उस तक पहुंचा था। वफ़ा, वफ़ा। उसने वफ़ा का सर अपनी गोद में रखकर उसे आवाज़ें दी। उसका गाल थपथपाया मगर वो बेसुध होशो खिद से बेगाना थी। डॉक्टर, वफ़ा ठीक तो है? मूसा ने बेचैन होकर पूछा। इनको कोई शदीद ज़हनी सदमा हुआ है जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई, और फिर शायद काफ़ी वक्त से कुछ खाया भी नहीं है। मगर आप फिक्रमंद ना हो, मैंने सुकूनावर इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इंशाल्लाह होश में आ जाएंगी। डॉक्टर ने तसल्ली दी। थैंक यू डॉक्टर। वो वफ़ा के पास उसके सहारे बैठ गया। वफ़ा का मुरझाया हुआ चेहरा उसके गम की दास्तान सुना रहा था। मूसा ने वफ़ा के गालों को अपनी उंगलियों की पोरों से छुआ था। उसको याद आया था कि वफ़ा ने उसको कहा था जब उसका गुस्सा शांत होगा तब उसे एहसास होगा उसने क्या किया है, और ऐसा ही हुआ था। हवास बहाल होते ही मूसा को अपने किए का अंदाज़ा हुआ था और वो मारे शर्मिंदगी घर भी नहीं आया था। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को आमादा किया था वफ़ा का सामना करने पर, मगर वफ़ा को उस हालत में देख कर तो जैसे मूसा नदामत के समंदर में गर्क हो गया था। मूसा मुर्तज़ा पत्थर नहीं था, उसका पत्थर बनाया था। उसके अपनों ने उस पर से एतबार की चादर को छीन लिया था, उसकी अना को तार तार किया था। जियाले अहमद उसकी फुफोजात थी। फराह फुफो की शादी अहमद साहब से हुई थी जिनका दुबई में अपना बिजनेस था। फुफो शादी के बाद दुबई चली गई। 2-3 सालों में ही उनका पाकिस्तान में चक्कर लगता, मगर उनका रब्ता फ़ोन पर तकरीबन हफ्ते में कई बार हो ही जाता था। इन दिनों भी फुफो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आई हुई थी। मूसा की हीरा से मंगनी हो चुकी थी। वो हीरा के शहर में जकरा रहता था, मगर मूसा को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे जियाले का अंदाज मुख्तलिफ हो
وہ کسی نہ کسی بہانے اس کے پاس رہنا چاہتی ہو۔ موسیٰ جہاں بھی ہوتا اس کی نظریں اسے اپنے اوپر محسوس ہوتی۔ موسیٰ اس سے کترانے لگا تھا۔ وہ اس کو کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ جیالے نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا تو کس چیز کے لیے اسے منع کرتا۔ موسیٰ سوچ ہی رہا تھا کہ ہیرا کو بتانے کا جیالے کے بارے میں، مگر اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ جیالے کی ایک حرکت نے اسے سب کی نظروں میں مجرم بنا دیا تھا۔ آئکا چچی کے بھائی کی شادی تھی۔ سب اس میں شرکت کے لیے ایک دن پہلے ہی چلے گئے تھے۔ ماما پاپا اور دادی کا شادی والے دن ہی جانے کا ارادہ تھا۔ ان دنوں کام کی وجہ سے موسیٰ شہر سے باہر تھا۔ دوپہر ہی واپسی ہوئی تھی تو تھکن کی وجہ سے وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ شام بھرپور نیند لے کر جب باہر آیا تو ماما نے بتایا کہ ہیرا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ پریشان ہو کر ہیرا کے روم میں گیا تھا۔ ہیرا کو بخار تھا، وہ دوا لے کر سو رہی تھی تو موسیٰ واپس آ گیا۔ موسیٰ ابھی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ جیالے کی پکار پر رک گیا۔ تم گئی نہیں سب کے ساتھ؟ موسیٰ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کے بغیر میں وہاں جا کر کیا کرتی؟ جیالے نے ایک ادا سے کہا تو موسیٰ نے کھٹک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اب آپ اتنے نادان نہیں ہیں موسیٰ کہ میری فیلنگز سمجھ نہ سکے۔ جیالے نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ جیالے یہ کیا حرکت ہے؟ موسیٰ نے غصے سے کہا۔ موسیٰ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ کب ہوا مجھے بھی علم نہیں، مگر اب میں آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ اس کے اظہار محبت پر موسیٰ کا خون کھول گیا تھا۔ غصے میں اس کا ہاتھ اٹھا اور جیالے کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ شرم آنی چاہیے جیالے، تمہیں ایسی گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے۔ ہٹو میرے سامنے سے کہ اس سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں۔ وہ غصے سے بھنکارا تھا۔ موسیٰ تمہیں میرا ہونا ہوگا اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ چھوڑے مجھے، موسیٰ پلیز۔ اس کی آواز پر سب باہر آئے تھے اور زور و شور سے روتی ہوئی جیالے کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے جیالے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ مرتضیٰ صاحب نے جیالے کو سینے سے لگاتے پوچھا۔ ماموں، وہ ماموں موسیٰ نے میرے ساتھ، اس کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ موسیٰ کیا ہے یہ سب؟ مرتضیٰ صاحب نے پریشانی سے موسیٰ سے پوچھا۔ وہ تو خود اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی جیالے بول پڑی۔ موسیٰ نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیالے کی بات نے جہاں موسیٰ کو حیران کیا وہیں سب کو سابس ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا فضول بول رہی ہو؟ دادو نے صدمے سے کہا۔ میرا موسیٰ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ سچ بول رہی ہوں میں نانو، آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھیں۔ جیالے نے اپنے گال آگے کیا جس پر موسیٰ کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ موسیٰ نے کہا یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے انہیں منع کیا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور میرے ساتھ۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ درمیان میں ہی چیخ پڑا۔ اس کے کردار پر جیالے نے شدید وار کیا تھا۔ ہاں میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا مگر اسی کی وجہ سے۔ یہ ساری بکواس اس نے کی کہ میں نے نہیں۔ آپ سب میرا یقین کریں۔ ہیرا تمہیں تو میرا یقین ہے نا؟ تم تو جانتی ہو میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ نے ہیرا کے ہاتھ تھام کر کہا۔ اس لیے تم بھی مجھ سب کے ساتھ ہی شادی میں بھیجنا چاہتے تھے تاکہ یہ کر سکو؟ ہیرا نے اپنا ہاتھ موسیٰ کی گرفت سے کھینچتے ہوئے کہا۔ پل بھر تو موسیٰ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہیرا تم؟ موسیٰ کو اپنے الفاظ گم ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل جکڑ لیا ہو۔ جیالے نے کئی بار کہا اسے تمہاری نظروں میں اپنا آپ محفوظ نہیں لگتا، مگر میں نہ مانی۔ کاش میں نے اس کی بات پر یقین کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، ہیرا نے روتے ہوئے کہا۔ جہاں ہیرا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے تو دوسری طرف مرتضیٰ صاحب کا ہاتھ موسیٰ پر اٹھا تھا جس نے موسیٰ کے ساتھ سب کو سکتے میں کر دیا تھا۔ موسیٰ نے بے یقینی سے ہیرا اور بابا کو دیکھا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی موسیٰ کہ تم میری تربیت پر انگلی اٹھاؤ گے۔ اپنے ہی گھر میں نقب لگاتے ذرا شرم نہ آئی؟ مرتضیٰ صاحب نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نمرا بیگم نے انہیں سنبھالنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی مگر وہ انتہائی اشتعال میں تھے۔ دادو تو گویا اس پوری صورتحال سے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ موسیٰ کو تو گویا اپنی ذہنی حالت مفلوج ہوتی دکھائی دی تھی۔ وہ اپنوں کو بھی چھوڑ کر بھی تنہا کھڑا تھا، سچا ہو کر بھی جھوٹا ہو گیا تھا۔ اس کی محبت نے بھی اس کا اعتبار نہ کیا تھا۔ تم میرا مان تھے موسیٰ، مگر تم نے اس مان کی دھچیاں اڑا دی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ مرتضیٰ صاحب نے اسے گھر سے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ موسیٰ نے قہر بھار نگاہ جیالے پر ڈالی جو اپنی آنکھوں میں فتح مندی لیے کھڑی تھی، اور پھر موسیٰ بے اعتباری اور شک کے پلندوں کا ڈھیر اپنے سینے پر لیے ممتا ہاؤس سے نکل گیا تھا۔ وہ شاید کبھی نہ لوٹتا مگر دادو کی طبیعت نے اسے لوٹنے پر مجبور کیا۔ پچھلے سال دادو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی قسم کا صدمہ دینے سے منع کیا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ دادو سے ملنے کے لیے آنے لگا تھا۔ اس دن کے واقعے سے گھر کے بچوں کو بھی خبر رکھا گیا کہ یہی بہتر تھا۔ رفتہ رفتہ بڑوں نے اس بات کو کافی حد تک بھلا دیا تھا مگر موسیٰ آج بھی 2 سال پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اپنے اندر کے اٹھتے لاوے کو ہی وہ وفا پر نکالتا تھا مگر وہ ایسا کرنے کے بعد
इज़्तिराब में आ जाता। वफ़ा के आंसू उसे बेचैन कर देते। वो अपनी इस कैफियत को गुस्से में बदल देता था। वफ़ा की अपने लिए फ़िक्र उसे अच्छी लगती थी। अगर वो जान जाती तो पागल हो जाती, क्योंकि उसने वफ़ा की नज़रों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, लेकिन वो मोहब्बत के हाथों पहले ही लुट चुका था। इसलिए वो दोबारा इस मंजिल का सफ़र नहीं करना चाहता था। मगर वो लड़की उसे ज़ेरो भार करने पर तुली थी। किसकी वजह से वो झुंझलाहट का शिकार हो गया। वो जितना उससे दूर होने की कोशिश करता, वो मज़ीद उसके पास आती। उस दिन भी यही हुआ था जब हन्नान ने फ़ोन पर बताया था कि निमरा बेगम की तबीयत ठीक नहीं है। मूसा ये सुनकर ममता हाउस पहुंचा, मगर गेट पर ही उसकी मुलाकात जियाले से हुई। मूसा को इल्म नहीं था कि वो पाकिस्तान आई हुई है। हाय मूसा, कैसे हो? चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो आम से लहजे में पूछ रही थी। उसका अंदाज मूसा को सुलझा गया था। उसने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली और अंदर जाने लगा कि जियाले की बात ने रोक दिया। क्या वफा को पता है तुम्हारे बारे में? उसने मासूमियत से पूछा था। वैसे नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है, वरना क्यों करती तुमसे शादी। मुझे तुम पर बहुत अफसोस होता है कि अपना घर होते हुए भी तुम अकेले रहते हो। तुम कहो तो मैं मामू से बात करती हूँ, जियाले मसनूई फिक्रमंदी से बोली। मूसा ने बहुत मुश्किल से अपने भरते गुस्से को रोका था और बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गया। जियाले का कहकहा उसे अपने पीछे सुनाई दिया था। मूसा घबरा हुआ घर में दाखिल हुआ। वफा ने देखा था, उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख था। वफा एक जिस्म में उस तक आई थी। मूसा, क्या हुआ है? क्या बात है? आप ठीक तो हैं? वफा ने उसके माथे पर हाथ रख कर पूछना चाहा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो। मूसा एकदम दहाड़ा था। वो सहमी ज़रूर थी, मगर उसके पास से हटी नहीं। आप मुझे बताएं, क्या बात है? क्यों इतना परेशान है? तुम होती कौन हो ये सवाल पूछने वाली, और किसने हक दिया है तुम्हें? वो झटके से उठ खड़ा हुआ। उस वक्त उसका लहजा ही नहीं, वो खुद भी शोला बार बना हुआ था। मैं बीवी हूँ आपकी। इस हक से पूछ रही हूँ? अच्छा तो ज़रा बताओ, कब मैंने तुम्हें इस हक से नवाजा? कागजी रिश्ते पर हक नहीं जमाया करते। मूसा ने ज़ोर से वफा के बाजू को पकड़ के कहा। मगर मैं आज तुम्हें इस नाम निहाद रिश्ते से भी आज़ाद कर दूंगा। मैं तुम्हें तल्ला। मूसा, वफा को जैसे होश आया था, वो हलक के बल चिल्लाई थी और अपना हाथ उसके मुंह पर रखा। खुदारा, ऐसा जुल्म न करे, मैं मर जाऊंगी। अभी आपको एहसास नहीं आप क्या कर रहे हैं। वो रोते हुए मूसा के पाँव में गिरी थी, उससे इल्तिजा कर रही थी। वो गुस्से में पैर छुड़ाता बाहर निकल गया। जख्म झीले, दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए बहुत। सुबह मूसा की आंख खुली तो अपने बराबर वाली जगह को खाली पाया। शायद वफा पहले ही नींद से बेदार हो चुकी थी। उसकी तबीयत का सोचते हुए वो उठ बैठा। स्लीपर का पाँव में डालकर वो नीचे आ गया और देखा तो वो किचन में मसरूफ़ नाश्ता बना रही थी। मूसा किचन के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। वफा की नज़र मूसा पर पड़ी। वो खामोशी से चाय का कप स्लैब पर रखकर किचन से निकलने लगी तो वफा का कंधा मूसा के शाने से टकराया। वफा ने एक नज़र ठहर कर उसे देखा, मगर पहली बार मूसा ने कुछ नहीं कहा था। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। मूसा उसे पुकारना चाहता था, लेकिन अल्फाज थे ही नहीं उसके पास। वो कैसे रोकता उसे और क्या कहता? दिन यूं ही गुजर रहे थे। वफा ने चुप साध ली। उसने मूसा के सामने आना भी कम कर दिया। मूसा को उसकी खामोशी खलने लगी थी, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। आदत उनकी अब कुछ इस तरह हो गई कि अब उनकी बेरूही से जान जा रही हो जैसे। वो जो बुरी तरह काम में मसरूफ़ था। उसी दौरान फ़ोन की तेज़ बजती घंटी ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मूसा ने उछलते फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। हाय मूसा। स्पीकर से निकलती आवाज़ ने मूसा की कनपट्टियों को सुलझाया था। फ़ोन क्यों किया है? वाह, तुम तो मुझे आवाज़ से ही पहचान गए हो। शट अप वो धारा। रिलैक्स मूसा, कूल डाउन। मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि बेचारी वफा का वहाँ सदमे से बुरा हाल है और तुम होके काम में लगे हो। तुम्हें अपनी बीवी का ज़रा ख्याल नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? लो, अब जाहिर सी बात है, किसी बीवी को उसके शोहर के गुज़िश्ता कारनामे का इल्म होगा तो उस पर क्या गुजरेगी। जियाले, क्या कहा है तुमने उसे? मूसा ने गुस्से से कहा। सच कहा है। मैंने सोचा तुमने तो बताया नहीं, मैं ही बता दूं। क्यों उसको अंधेरे में रखना? अभी तुमसे पहले उसी को फ़ोन किया है। वो तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। जियाले ने सफाकी से कहा। मुझे ठुकरा कर तुमने अच्छा नहीं किया था मूसा। जब तुम्हें मैं अपना नहीं बना सकी तो मैं किसी के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। जिस आग में मैं जली हूँ तुम्हें पूरी ज़िंदगी जलाऊंगी। उसे से कहते हुए उसने फ़ोन काटा था, मगर मूसा कितने ही पल हिल भी ना सका। इंतहाई रैश ड्राइविंग करके वो घर पहुंचा, मगर घर में मुकम्मल सन्नाटा था। उसको वहशत हो रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। उफ वफा, तुम एक बार तो मुझसे सच मालूम कर लेती। कैसे करती? क्या तुमने कभी मौका दिया? उसने बहुत कोशिश की थी तुम्हारा दुख बांटने की। उसके दिल ने मूसा को मलामत की थी। सभी लोग लॉन्च में विराजमान थे। माज और अफीफ़ा के निकाह के बारे में बातें हो रही थी। जब वो घर में दाखिल हुई, वफा
निमर बेगम की नज़र उस पर पड़ी। उनके पुकारने पर सब ने उनकी तरफ देखा। ये क्या हाल बनाया हुआ है? और मूसा मूसा कहाँ है? उन्होंने तशवीश से पूछा। बिखरे बाल, मलगजा हुलिया और सुर्ख आंखें। वफा की हालत देखकर सबको फिक्र हुई। वफा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, इस बार आयका ने पुकारा, मगर वो इनको नज़रअंदाज करके जियाले के पास गई और ज़ोरदार तमाचा उसको मारा था। जहाँ जियाले ने उसे फटी फटी आंखों से देखा तो बाकी भी दंग रह गई। दरवाजे में मौजूद मूसा को तो गोया सकता ही हो गया। वफा, क्या कर रही हो ये? निमरा बेगम ने आगे बढ़कर वफा को रोका। उसने एक झटके से उनसे अपना आप छुड़वाया था। मैं जान से मार दूंगी इसे। वफा ने लपक कर जियाले का गला पकड़ा था। वफा, छोड़ो उसे, क्या पागल हो गई हो? आयका और निदा ने वो मुश्किल से रोका था। हाँ, हो गई हूँ पागल। ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मूसा के किरदार पर उंगली उठाने की? वफा ने चीखते हुए कहा तो लम्हे भर को सब खामोश हो गए। और क्या कहा तुमने? मूसा मेरे काबिल नहीं, उनके किरदार में खोट है। मैं उन्हें छोड़ दूँ तो मिसिस जियाले, जिस शख्स की मोहब्बत बचपन से मेरे दिल में परवान चढ़ी हो, जब उसका साथ मुझे नसीब हुआ तो मैं उसे तुम्हारी झूठी बातों में आकर छोड़ नहीं सकती। उसने एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर कहा। सबकी नज़र एक साथ वफा पर उठी थी और मूसा तो हैरत के समंदर में गोताज़न हो गया था। मैंने कोई झूठ नहीं कहा, तुम्हें सर से ही आगाह किया है। तुम चाहो तो सबसे पूछ लो उस दिन क्या हुआ था। जियाले ने साफ अपना दामन बचाते हुए कहा, हालांकि उसे वफा से इस रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। बात की तस्दीक वहाँ की जाती है जियाले, जहाँ यकीन न हो। मुझे मूसा पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। तुम्हारी बातों पर बाकी ईमान ला सकते हैं, मगर मैं नहीं, समझी? वफा की इस पुख्ता लहजे पर मूसा को अपने दिल में पर से पत्थर सिरकता हुआ महसूस हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकता था जिस लड़की पर उसने अव्वल रोज से जुल्म ढाए थे वो इस पर इतना भरोसा करेगी। तुम्हें क्या लगा हीरापी की तरह तुम मुझे भी अपने बातों के जाल में फंसा लोगी और मैं फंस जाऊंगी? गलत, बिल्कुल गलत सोचा तुमने। इस बार भी तुम्हारा वो वार सख्त था, मगर अफसोस वो खाली गया जियाले अहमद, क्योंकि इस बार मुकाबिल तुम्हारी जान से प्यारी दोस्त या कोई और नहीं था, बल्कि इस बार तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मूसा मुर्तज़ा की बीवी खड़ी थी। वफा, मूसा मौजूद थी। वफा ने उंगली के इशारे से बावर करवाया। मैं मूसा की चाह में पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, फिर यहाँ तो सिर्फ तुम हो जियाले। अगर आप सब ने जो बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी वो छुपाए रखी। कितनी बार पूछा सबसे कि हीरापी ने रिश्ता क्यों तोड़ा, आखिर मूसा के घर छोड़ने की क्या वजह है, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना करके बात टालते रहे। मुझे लगा हीरापी के छोड़ देने का गम मूसा को खाई जा रहा है। मैं अपनी मोहब्बत से उनके दिल के जख्मों को भरने की कोशिश करती रही, मगर मुझे क्या मालूम था उन्हें तो अपनों की बेतबारी ने मारा था। वो कैसे मुझ पर यकीन करते, मेरी वफाओं का एतबार करते? वो तो तार तार हुई अना को अपने अंदर लिए घूम रहे थे। वफा ने रोते हुए सब पर नज़र डाली। पूरा घर बुत बना खड़ा था, उसे सिर्फ सुन रहा था। किसी के पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। सच ही तो था, सब ने ही तो उस पर से एतबार की चादर को हटाया था। वो जल्दी ही मुर्तज़ा साहब के पास आई थी। ताया जान, आप अपनी भांजी से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर क्या बेटे से ज़्यादा? आपको एक बार भी मूसा सही नहीं लगे? क्या आपके दिल ने एक बार भी गवाही नहीं दी कि वो आपकी तरबियत पर कभी आंच आने नहीं दे सकती? बेशक फैसला करना मुश्किल था कि दो में से किसी एक का साथ देना दूसरे पर शक करने के मुतरादिफ ही था, मगर क्या ये बेहतर नहीं होता कि फैसला करने में आप थोड़ा इंतज़ार कर लेते? आप सोचते ताया जान, क्या मूसा का जियाले से शादी करना मुश्किल मरहला था? ख़ानदान का लाडला बड़ा बेटा जिसको घर भर की हिमायत हासिल हो, दादों का सपोर्ट हो, फिर और वैसे भी दादों के फैसले पर तो आप समेत सब सर झुका देते हैं ना। फिर मुश्किल तो जियाले के लिए था ना। एक तो मूसा की मंगनी हो चुकी थी और फिर वो हीरापी से मोहब्बत भी करते थे। उसने सवालिया नज़रों से देखा। आप बताए लुकमान ताया, मूसा अपने घर में होते हुए ये जानते हुए भी कि इस वक्त घर में उसके माँ बाप, दादों, यहाँ तक कि मंगेतर भी मौजूद है, मूसा ने इतनी दिलेरी दिखाते हुए जियाले के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो घर को छोड़ने के बाद कुछ क्यों ना किया? कि तब तो उन्हें आज़ादी थी कि वो किसी को जवाबदेह भी नहीं थी। अगर तो मूसा के किरदार में झोल होता तो क्या जियाले अपनी इज़्ज़त और मान के साथ आप लोगों के सामने होती और हीरापी की शादी आप सब इतने सुकून से करवा सकते थे? ताया जान, कभी सोचा कि आप आज तक मूसा की गलती जो उन्होंने की ही नहीं उसको भुला क्यों नहीं पाए? वो इसलिए कि आपको कभी भुलाने का मौका नहीं दिया। पुप्पो ने वफा ने मध्यम करते लहजे में कहा तो मुर्तज़ा साहब ने चौंक कर उसे देखा। ये सच ही तो था। जब भी बात होती आखिर में फराज ज़रूर याद दिलाती कि मूसा ने जो किया अच्छा नहीं किया। क्यों पुप्पो? जियाले को रोकने की बजाय आपने उसी का साथ दिया, उसे सही और मूसा को गलत बोल कर दिलों में नफरत बढ़ाती नहीं। क्यों पुप्पो, क्यों? वो तो पहले ही हमारी शर्मिंदगी की सर नहीं उठा पा रही थी। उसके इस तरह कहने पर तो वो ज़मीन में ही गड़ गई। उफ, आप सब ने ये क्या किया? आप लोगों ने मिलकर मूसा से उनका सब कुछ छीन लिया।
ان کی عزت، انا، رشتے، یہاں تک کہ محبت بھی۔ وفا نے بکھرے لہجے میں کہا۔ پورے لاؤنج میں سکوت طاری تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا۔ دھند کے بادل چھٹے تو سب صاف دکھائی دیا تھا۔ آج ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مرتضیٰ صاحب موسیٰ سے سخت شرمندہ تھے، مگر موسیٰ نے انہیں گلے سے لگا کر ان کے پچھتاوے کو بڑھنے نہیں دیا۔ ممتاز ہاؤس ہمیشہ کے لیے لوٹ آیا تھا۔ پھوپھو اور جیالے اسی دن واپس چلے گئے تھے۔ سر سامنے آنے پر سب کی نظروں میں واضح ناراضگی تھی۔ نفرت کی آگ میں جھل کر جیالے نے نہ صرف خود کی بلکہ پھوپھو کی بھی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ دونوں نے معافی مانگی تھی اور سب نے معاف بھی کر دیا وفا کے کہنے پر، مگر دلوں میں ایک خلش سی حائل ہو گئی تھی۔ لان کو رنگ برنگی کمکموں روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف جشن کا سا سما تھا، جہاں ایک طرف معاذ اور عفیفہ کا نکاح تھا، دوسری طرف موسیٰ کے لوٹنے کی خوشی۔ آج کتنے عرصے بعد ممتاز ہاؤس کی در و دیواروں نے موسیٰ کی ہنسی کو سنا تھا۔ وفا وہ لان میں ایک جانب کھڑی تھی جب موسیٰ نے اسے پکارا۔ موسیٰ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں بے حد پرسکون اور شاندار لگ رہا تھا۔ چہرے پر وہی پرانی رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، وفا نے مدھم آواز میں پکارا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میں نے تو آپ کو تبھی معاف کر دیا تھا جب سچ کا علم ہوا تھا۔ بس تھوڑا غصہ آیا تھا کہ کاش آپ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لیتے۔ وفا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کیسے کرتا بھروسہ وفا؟ سبھی کے شک نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ پھر ہیرا کی بے اعتباری نے تو محبت پر سے یقین ہی مٹا دیا۔ تو اب یقین ہو گیا محبت پر؟ وفا نے آنکھیں سکیر کر پوچھا۔ ہاں، ایک دیوانی نے اپنا سحر ایسا بکھیرا کہ یہ بندہ گوڈے گوڈے اس کے عشق میں ڈوب گیا۔ اچھا، میں کیسے مان لوں؟ کہو تو کوئی ثبوت کے طور پر مظاہرہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے آخر میں شوق ہوا۔ موسیٰ، خبردار جو پٹی سے اترے۔ تو وفا نے سرخ پڑتے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے موسیٰ کو دیکھا، مگر اگلے ہی پل نظریں جھکا گئی، کیونکہ موسیٰ کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آج سے ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے وفا، جہاں پر محبت، چاہت اور اعتبار ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی موسیٰ نے وفا کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ یہ کیا کیا؟ وفا نے حیرت سے دیکھا۔ تم ان کھلے ہوئے بالوں میں اور بھی حسین لگتی ہو، موسیٰ نے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ وفا نے سوچا، بے شک اعتبار کا راستہ ہی محبت کی منزل ہے، اور دونوں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ چاند بھی دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور بدلیوں میں چھپ گیا کہ جس طرح ٹوٹ کے گرتی ہے زمین پر بارش، اس طرح خود کو تیری ذات پر مرتے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔